Hello dear students, welcome back. In our last lecture, we studied our second chapter of SFS fable. In this chapter, you studied two fables. The first fable name is Stag at the Pool and the second fable name is The Dog in the Manger. In first fable, you study the moral message. Which message? The first study, you study the message. You have a thing. Which thing you have? You have to satisfied of that. आपके पास जो भी चीज़ है आपको उसको लेकर सेटिस्फाइड होना चाहिए, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी आपके काम आ सकती है. इन द सेकंड फेबल यू स्टडी द मॉरल मैसेज. विच मैसेज? द सेकंड मैसेज ऑफ दिस फेबल्स, you have a thing but you have no use of that, so you have to allow someone to use it. आपके पास अगर कोई चीज़ है पर अगर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो तो आपको वो चीज़ किसी और को डेफिनेटली यूज़ करने देनी चाहिए. सो नाउ एंड ऑल्सो वी स्टडी सम हार्ड वर्ड्स ऑफ द लास्ट लेक्चर. नाउ वी स्टडी द अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर SFS fable. Now let's turn on our other exercise. So now question number 2, opposite words. Opposite words means विरुद्ध अर्थ वाले शब्द. जैसे कि आपने हमारी जो पहली पोयम थी रेन इन द नाइट, आपने उसमें स्टडी किए थे सॉफ्ट अपोजिट हार्ड, लॉन्ग अपोजिट शॉर्ट. तो उसी तरह से अब हमें इस लेसन में भी कुछ अपोजिट वर्ड्स को स्टडी करना है. सो नाउ सी द अपोजिट वर्ड्स ऑन दी बोर्ड. I write on the board and you copy down in your notebook. First, handsome, HANDSOME, handsome means beautiful, सुंदर. हम उसको ब्यूटीफुल या सुंदर बोलेंगे. जैसे आपने पहली फेबल्स में देखा, स्टैग के जो एंकर थे वो कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे, और उसकी वजह से जो स्टैग था वो कैसे दिख रहा था? ही इज लुकिंग सो हैंडसम. सो हैंडसम अपोजिट. एंड उसके जो लेग्स थे वो कैसे थे? वो बहुत ही अगली थे. तो हैंडसम अपोजिट अगली, UGLY, अगली. नाउ द सेकेंड वर्ड, dislike. Dislike means पसंद ना होना. It means नापसंद. So and like means पसंद होना. Dislike means नापसंद, like means पसंद होना. तो dislike opposite like, LIKE, like. Comfortable means, yesterday I told you, comfortable means which place you feel secure. Comfortable means you are feeling so secure of that place. That's called a comfortable place. So comfortable is opposite uncomfortable. मतलब comfortable means secure feel करना, safe feel करना, and uncomfortable means unsafe feel करना. So comfortable opposite uncomfortable, UNCOMFORTABLE, uncomfortable. Loudly means जोर से. जैसे कि आप अगर म्यूजिक सुनते होगे तो आपको मालूम है, हमने हमारी फर्स्ट पोएम रेन इन द नाइट, उसमें भी लाउडली इस वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग देखा था. जैसे बारिश जो हो रही थी वो कैसे हो रही थी? लाउडली हो रही थी. तो यहाँ पे भी लाउडली अपोजिट, लाउडली मीन्स हो गया जोर से, और उसके अपोजिट हमें लिखना है साइलेंट.
silently. Loudly opposite silently. Silently. या फिर कोई said it softly. 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 This is our question number 2. Opposite words. Handsome opposite ugly. Dislike opposite like. Comfortable opposite uncomfortable. Loudly opposite silently or softly. So write down in your notebook question number 2. Okay, you write it. Now we are going to start our question number 3. Question number 3. Question number 3 है write the plural forms. Question number 3. Write the plural form. Plural forms of the given pronouns. Given pronouns. Pronouns. Write the plural forms of the pronouns. आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है जिसमें आपको प्रोनाउंस के प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चार्ट राइट करके देती हूँ जिसमें आपको समझ आएगा कि आपको उस प्लूरल फॉर्म्स में कौन सा फॉर्म राइट करना है. जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल. Pronouns we are used of place of nouns. When we use it pronouns we use it place of nouns. हम nouns की जगह पर pronouns यूज करते हैं. जैसे कि अब आपके सामने मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी. नीला is a clever girl. नीला is live in a Nandura. नीला is live with her parents. सो ये हो गए सेंटेंस. और ये सभी सेंटेंस में मैंने नीला 3 टाइम यूज किया. बट अगर हमें नीला 1 टाइम ही यूज करना है तो हम नीला की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. she. So first I write the pronoun singular and plural. Here I, you, he, she, it. These are first person. These pronouns are first person. I is first person singular pronoun. You is a second person singular pronoun. You is a second person singular pronoun. And he, she, it. These 3 are third person singular pronouns. And the plural form of I, we, you, he, she, it. We use it they. This is the I first person singular pronoun, you second person singular pronoun, and he, she, it. These 3 are third person singular pronouns. And we use I का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? we. I means मैं and we means हम सब. जैसे कि I मैं अकेली होगी और we means आप सभी स्टूडेंट्स हो गए. you means some particular student and you means and the plural form of you means totally students of our class. He, she, it. He means third person. I am saying with the I am saying with about the third person. Like I said it Neela is a clever girl. Neela live with her father. Neela is live in the Nandura. मतलब मैंने क्या बोला कि नीला, एक नीला नाम की लड़की है. नीला अपने मम्मी पापा के साथ रहती है. नीला नांदुरा में रहती है. तो मैंने तीनों टाइम नीला यूज किया. तो नीला की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? शी. कौन सा यूज कर सकते हैं? शी. बट ऑल्सो इफ आई सेड इट अबाउट आवर क्लास, मैं अगर आप हमारे क्लास के बारे में बात करूंगी, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मैं आप सबको प्लूरली मतलब आप सब ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए ना, तो आप सभी के बारे में मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगी. पर्टिकुलर सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में यूज करना है
अगर वो बॉय है तो उसके लिए ही यूज करूंगी, अगर वो गर्ल है तो उसके लिए शी यूज करूंगी. एंड सम एनिमल और अ थिंग लाइक अ डस्टर, it is a duster, so I use it dust, I use with it. So these are the pronouns, singular pronoun and the plural pronouns. So now the question, write the plural forms of these given pronouns. Here A, he, D, his, C, I, D, my. Now here just I told you I, you, he, she, it, and here he and I. So what we use it? He. For he के लिए हम कौन सा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे? they, THEY, they. एंड I के लिए हम कौन सा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे? we. Now here you see here he is a singular pronoun, but his possessive case is his. ही की षष्ठी विभक्ति कौन सी आती है? his. और his के लिए हम जैसे he, she, it के लिए they यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे his, HIS, his और her, इनके लिए हम them यूज करेंगे, THEM, them. एंड my, I के लिए जो हम possessive केस में my यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव केस में सिंगुलर फॉर्म का आई का माय हो गया और वी का अवर हो गया, वी का अवर हो गया. सो इसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे फिर देम, DHEM, देम. एंड माय के लिए राइट करेंगे अवर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोनाउंस. I explain it very shortly because of this question. I explain you the whole pronouns in our next lecture in detail. मैंने आपको अभी बहुत ही शॉर्टली हमारी इस क्वेश्चन की वजह से ये प्रोनाउंस एक्सप्लेन किए, बट इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल से हमारे अगले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगी. जैसे मैंने आपको नाउन्स एंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट नाउन्स का एक्सप्लेन किया है, तो वैसे ही हम उसका अगला पार्ट जो प्रोनाउंस होता है वो मैं आपको हमारे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी. सो फर्स्ट यू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज प्रोनाउंस एंड दीज चार्ट आल्सो यू राइट इन योर नोटबुक. Question number 4. Write the feminine gender of the write the feminine gender of the given names. Gender, जैसे कि अब आपको ये मालूम, जेंडर मीन्स हमें यहाँ पे उसका, जैसे हम बॉय इज अ एक लड़का, एक किसी लड़के के बारे में बात कर ले, गर्ल किसी लड़की के बारे में बात कर ले, तो बॉय ये हो गया मेल जेंडर एंड गर्ल ये हो गया फीमेल जेंडर. तो उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ फेमिनाइन मतलब गर्ल्स के लिए कुछ जेंडर दिए गए हैं, तो वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं. जैसे ए स्टैग, स्टैग इज अ मेल डियर, सो इसके अपोजिट हो गया, हमें फीमेल जेंडर यहाँ पे राइट करना है, तो हम राइट करेंगे डियर. स्टैग के अपोजिट डियर, स्टैग मीन्स मेल डियर हो गया एंड डियर मीन्स फीमेल डियर हो गया. he it is a male gender and उसके लिए हम she it is a female gender.
हंटर, हंटर ये मेल जेंडर हो गया और इसके लिए हम फीमेल जेंडर राइट करेंगे हंट्रेस। हंट्रेस एंड डॉग, डॉग ये भी क्या हो गया, ये फीमेल जेंडर है तो उसके लिए हम राइट करेंगे फीमेल जेंडर, फीमेल फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पे हमें जो स्त्रीलिंगी जेंडर, स्त्रीलिंगी का यूज करना है। जैसे स्टैग ये हो गया मेल डियर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया बॉय, स्टैग इट इज अ मेल जेंडर एंड डियर इट इज अ फीमेल जेंडर। ही इज अ मेल जेंडर, शी इज अ फीमेल जेंडर। हंटर इज अ मेल जेंडर एंड हंट्रेस इज अ फीमेल जेंडर। Dog is a male gender and bitch is a female gender. Now, these three, today I explain you 3 questions and all these 3 questions you have to write in your notebook 2 times. We will meet in our next lecture.